Hi, good morning, Ravi. Good morning. Where are the rest of students? I don't know. Yeah, how would you know? You are residing in a case because the weather is too much adverse condition. Weather condition is too much adverse. Yes, Aditi, good morning. Where is Aditi? Yeah, she arrived. Good morning, Acharya. Good morning, Aditi Behan. Where is Riya? अच्छा जी मैसेज भेजे तो पता नहीं यार कनेक्ट कर लो। Okay. Now we should start our session. We don't have enough time to wait for anyone too much. Okay, Aditi, come on video. Now, I hope you all are able to visualize my screen. Okay. Now you can see whenever you are going to open your MySQL, definitely first it asks for enter your password. Okay, just I am going to enter my password. And it gets unlocked. Okay, now I have entered into my database. The first and foremost command is that show databases, right? So you can also find out the way of working in MySQL whenever you are going to work with MySQL database directly without using the programming language. Then you can also directly interact with the database. Okay, today we are going to do so. Now look at here, show databases. So first command is what? Show databases. All right, and then hit enter key. Definitely it will list some databases for you, okay, which is pre-built database. Okay, available databases are listed here. Now you can select anyone or you can create yourself. Okay, no problem. We are here to create our own database, right? We are here to create our own database. Clear? So first of all, we create only one database because whenever we are going to perform this command, show databases, it means that there are so many databases available in our system. So it will list all data. It will list all databases. Okay. मैंने बताया क्या कि जब भी हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन में तो फर्स्ट कमांड हम क्या एग्जीक्यूट करते हैं शो डाटाबेसेस का एग्जीक्यूशन करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में हो सकता है एक से ज्यादा डेटाबेसेस अवेलेबल हो क्लियर है
और ये सारे के सारे डाटाबेसेस को अगर शो करना हो, इसलिए हम लोग फर्स्ट कमांड यूज करते हैं शो डाटाबेसेस। क्लियर है? तो आपके सामने आप जो देख पा रहे हैं कि डाटाबेसेस का लिस्ट आ जाता है। इसमें से अगर आपका कोई डाटाबेस है जिसको आपने क्रिएट किया है, आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर सपोज हम नोबिस हैं, हमने पहली बार इसको यूज किया है, तो इस परिस्थिति में हमें क्या है कि डाटाबेस बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग डाटाबेस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो डाटाबेस का नाम दिखा रहा है, यहाँ पे पहला क्या है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, यू कैन से हेयर इंफॉर्मेशन स्कीमा। सेकेंड वन itself MySQL, second one is performance schema. Okay, so you can see here, sys Sakila database and sys system database. 5 databases have been listed here, and the information clearly indicates that 5 databases are available here. Okay, so it means how many databases are there, you don't have to count because the statistics is displayed there. वहां पे आपको डिस्प्ले करता है, आप उसको देख सकते हैं। एंड यू कैन से दैट कि सर माय डेटाबेस इज नॉट प्रेजेंट हियर। ओके, then my database is not present here, then you can create your own database. First of all, we are going to execute ddl commands. Actually हम लोगों ने इसको पढ़ चुके हैं, आप लोगों में से कुछ बहुत लोग कर भी चुके हैं, और मैं जानता हूँ कि सब लोगों को मालूम भी है, फिर भी मैं एक बार करके आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये सब डायरेक्टली वहां पे यूज किया जाएगा प्रोग्रामिंग में। जब हम लोग पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन से डाटाबेस का कनेक्टिविटी जब होगी, है ना, तो वहां पे ये डायरेक्टली क्या होगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। और वहां पे आप फिर ये नहीं पूछेंगे कि सर ये कैसे वर्क कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द मैकेनिज्म। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सभी आदमी को उस वक्त कंफ्यूजन ना हो। पढ़े तो हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर ले। ठीक है, तो सबसे पहला होता है क्या, हमने आपको सिंटेक्स भी लिखाया था, क्रिएट database, right? Create database, and you have to specify the name of database, right? You have to specify the name of database. Clear? So what's the name of database that you want to specify here? It doesn't matter, you can use any one of the name that you like most. Okay, आप इसमें से किसी को हो या आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से आने का मतलब है क्या कि आप डाटाबेस आपके अकॉर्डिंगली होगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बट डाटाबेस नेम मस्ट बी रिलेवेंट, है ना। जिस ऑपरेशन से रिलेटेड आप डाटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि डाटाबेस आपका जो रिलेवेंट नेम, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, XYZ भी दे सकते हैं, लेकिन नाम रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट इन द सेंस कि सपोज यू आर गोइंग टू क्रिएट डाटाबेस फॉर एम्प्लॉय, देन डाटाबेस मस्ट नेम सपोज employee, right? Database name is what, imp, employee or imp you can say, and just hit enter. Okay, so query, okay, one row affected. Clear? So first command is what, create database name. You can note down the syntax if you have any sort of problem there. I am also telling you the right way of using syntax. Syntax, you can say syntax to create database. Okay, syntax to create database is what, number one, create database and db name. Db name means what, db name is what, database name. Okay, and then provide semicolon and hit enter key. Okay, then after what, press enter key. Okay, next example, that is the syntax. Okay, and I am here, I'm going to show you example create, we are directly visualizing it, no problem. Create database, okay, and database name suppose imp. I have just provided here. Clear?
So you can say that sir, imp is here database and that has been created. Okay, now come to the query command. You can also see here. Okay, just I am using next one is what? Sure, next one is that I am going to use that database, whatever database I have created. I'm going to use that database. Clear? So we have to use. So we have to. Next command is what? Second command, use imp. If you want to show the data, whether your database is present in this list or not. Okay, you can see there your imp is created. Okay, imp is available inside your database. Got it? So now use and database name. So second work is what? Whatever database you are going to use, firstly you have to specify use imp. Now the option, you can say that the database changed. Okay, you can visualize here. It is showing there that the database has been changed. Okay, now you can see, I'm just pointing it out. You can see here, database changed. It means what? I'm using what? Imp database. Clear? I'm using right now imp database. Got it? Next one is what? Sir, you can use show tables. Show tables. Tables are present because database was database is what? Database is basically tables. Okay, empty set is present there. Empty set is present there. Got it? So empty set is present there. It means what? You can say that, okay, sir, empty set is present there. I mean, no table is available here. Understood? So you can say, sir, what the syntax to create table? So you know very well. I am going to show you in a short way. So first of all, we need to create table. Create table imp. Okay, create table imp. अब एम्प्लॉय नाम का टेबल मुझे बनाना है और इसमें मैंने कह दिया क्या? EID. फर्स्ट फील्ड आई एम गोइंग टू असाइन EID, not EID. EID means employee ID. Which type of character should be there? Okay, it must be integer. Understood? और it must be varchar. No problem man, इसमें कोई इशू नहीं है. आप चाहें तो कोई भी डेटा टाइप आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. जस्ट आई एम गोइंग टू यूज इट्स फील्ड एज न्यूमेरिक. मैं इसका फील्ड न्यूमेरिक स्पेसिफाई कर रहा हूँ. एम्प्लॉय आईडी इन. अगर आप इसका साइज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं. इसका साइज जो मैक्सिमम 3 डिजिट्स का होना चाहिए. ठीक है, नो प्रॉब्लम सर. सर इसका नाम क्या होना? प्राइमरी की. क्लियर? प्राइमरी की. अगर आप इसमें प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. नो. नाउ ई नेम, imp नेम. क्लियर? varchar. ओके, varchar. नेक्स्ट वन इज व्हाट? अगर आप इसका साइज फिक्स करना चाहते हैं 50 कैरेक्टर्स हमारे फील्ड का साइज हो तो आप दे सकते हैं. नेक्स्ट ई सेल, एम्प्लॉय की सैलरी. ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी हम देना चाहते हैं, लेकिन ये कैसा होना चाहिए सर? इसमें कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है तो ये हमारा क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा होगा मेरा, क्योंकि कैलकुलेशन सैलरी में कैलकुलेशन हो सकता है. आपकी छुट्टियां डिडक्ट होती है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होते रहता है. अगर आप कहीं पे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसका बोनस भी मिलता है आपको. ठीक है, तो ये सब क्या है? ई सेल. उसके बाद है सपोज I created a table containing 3 fields only. ठीक है, और इसका सैलरी का साइज भी आप चाहें देना तो दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है. 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 6 कैरेक्टर का होना चाहिए. ठीक है, देन हिट इंटर की. क्लियर? Query affected, I mean table created. Now you can utilize your show tables. है ना? You can see here tables in imp is imp. ठीक है, एक टेबल यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अभी उस टेबल में क्या होगा? कुछ नहीं होगा. तो पहले आपने देखा क्या कि टेबल डाटाबेस को लिस्ट करना है, डाटाबेस को यूज करना है. यूज के बाद अगर नहीं है डाटाबेस तो आपको उसका टेबल बनाना है. टेबल में क्या करना है? वैल्यूज डालने हैं आपको. ओके, नेक्स्ट
इंसर्ट, मुझे उसमें क्या करना है, डाटा फीड करना है, तो इंसर्ट इनटू, राइट, emp वैल्यूज मैंने आपको बताया क्या कि जो इंटीजर वैल्यू है, सपोज हमने का 101 डाल दिया, इंप नेम जो भी अल्फाबेट, जो भी आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर होगा, आप कोशिश करें कि उसे सिंगल कोट में डालें, ठीक है। और सैलरी सपोज करिए कि 5 कैरेक्टर्स, ओके, 25,000 मैंने कर दिया, ओके, नेक्स्ट, हिट इंटर, okay, query affected. Now you can see select all from imp, okay, select all from imp. You can see here the table has already been created here, understood. Now I want to add one field more, DOB, okay, I want to add one field more, or suppose a mobile number, employee mobile number, clear है. So which command should I perform here? अगर मुझे यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का फील्ड और भी क्रिएट करना हो, तो हम किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे रवि? अल्टर, गुड, वेरी गुड, ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अल्टर. टेबल का नाम क्या है? अल्टर टेबल व्हाट? इंप. ऐड कॉलम मोबाइल, और इसका साइज कैसा देना है आपको, ठीक है. मोबाइल का भी आपका डेटाबेस का साइज देना पड़ेगा यहाँ पे. तो आपको इसका डेटा टाइप कैसा करेंगे? इसका डेटा टाइप डबल कर दें, क्या डबल कर दें या इंट कर दें? चलिए इंट कर देता हूँ, साइज इसका बड़ा हो जाएगा आपका डबल में, ठीक है. अब देखिए यहाँ से हमने इसको इंट कर दिया, रवि जी ने बोला कि सर आप इसको इंट कर दीजिए, लेकिन कैरेक्टर कितना होना चाहिए इसमें? 10 कैरेक्टर लेगा क्या? 10 कैरेक्टर होना चाहिए ना, क्या 10 कैरेक्टर तो होना चाहिए इसमें, ओके. नाउ यू कैन सी null value created. Now I have to feed data in mobile. Aditi, now it's your time. Respond me. Respond me. Which command should I use there to feed data in mobile? Aditi, alter, wrong. Riya Didi, can you tell me? Insert. What? Insert. Yes, it's also wrong. Aditi, Shaili Didi, yes. Update. Yes, correct. Shaili ji, smart. Okay. So update. Suppose if you are going to feed any sort of missed data in your database, any sort of correction, any sort of modification in data values, okay, you must perform अपडेट कमांड देयर, ओके. आपको वहां पे अपडेट कमांड यूज करना है, नहीं कि इंसर्ट फीड करना है. इंसर्ट करेंगे भाई, ऑलरेडी सारे फील्ड्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं ना, हमें सिर्फ क्या डालना है उसमें? हमें सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है ना, ठीक है. तो अपडेट इंप, टेबल का नाम क्या है आपका? इंप. सेट मोबाइल इक्वल टू, ठीक है, मोबाइल इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ओके. वेयर EID इक्वल टू व्हाट? 101. अगर मैं ऐसे, फिलहाल अभी मेरे पास डाटाबेस में रिकॉर्ड नहीं है, क्लियर है, सारे रिकॉर्ड्स नहीं है. अदर एम्प्लॉइज का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. तो अगर मैं ऐसा डाटा डाल देता हूँ वहां पे, तो देखेंगे क्या कि अपडेट तो कर देगा, क्लियर है, बात में आ रही है. लेकिन अगर इसके पहले अगर हमारे डाटाबेस में एक रिकॉर्ड नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होता, क्लियर है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होता,
तो हम लोग जब भी ऐसे लिखते हैं तो सारे का मोबाइल नंबर यही चेंज कर देता है, ठीक है, दोनों में अंतर हो जाता है। अगर हमें एक का करना है या सबका करना है, अभी तो एक ही है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे काम हो गया हमारा। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा करूंगा तो नहीं होगा। जैसे इससे पहले थोड़ा सा एक वैल्यू और डाल लीजिए इसमें, इंसर्ट, ठीक है, एक कैंडिडेट दूसरा है और जिसका नाम है, दूसरा एम्प्लॉय है मेरी सैली, ओके, शी इज गेटिंग 50,000, no problem, okay. Now this command will generate error, this command will generate error because I have created 4 fields, okay, and I am sending data for 3 fields only, so it will create error there, वहां पे क्या करेगा, आपको error बताएगा, क्लियर है। तो इसलिए हम लोग क्या करें इसको कि इसमें जो डाटा है हमको और पहले से फीड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, अब जाके क्या होगा, डाटा हमारा इंसर्ट हो पाएगा, क्लियर। नाउ सिंटैक्स एरर इज देयर, आउट ऑफ रेंज, वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज, मोबाइल एट रो नंबर 1, क्लियर। जो वैल्यू है इसका बाउंस कर गया भाई, इसका वैल्यू जो है बाउंस कर गया आपका, इसलिए इसमें डाटा हमारा ज़्यादा फिट नहीं करने देगा, क्योंकि वो रेंज वैल्यू का रेंज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 2 4 एक मैंने बताया था रवि जी को, क्या रवि जी, ठीक है। अब सपोज करिए कि इंट आपने कर दिया, तो इंट की वैल्यू का लिमिटेशन होता है भाई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब इंट वैल्यू का जो लिमिटेशन है उसको इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर डाटा आपको एरर देना शुरू करेगा, रेंज आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ रेंज, ठीक। नाउ क्वेरी अफेक्टेड, तो अब यहाँ पे देखें हम लोग फिर से सेलेक्ट करके देखें तो आपका क्या होगा, अब 2 वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, क्लियर। लेकिन अब क्या है कि हम लोगों को फिर से हमें क्या करना है कि ये जो डेटा टाइप आपने देखा था, अभी इसमें जो अधिक वैल्यू में डालूंगा तो नहीं लेगा, देखिए ध्यान से। अभी जो मैं कर रहा था आपको इंसर्ट कमांड हम लोगों ने परफॉर्म किया, और इंसर्ट में जो हम लोगों ने काम किया है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप इस वैल्यू को देंगे तो नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट रवि, यू कैन फाइंड द एरर, यू कैन सी द एरर हेयर, ओके, एरर 1264, इट मीन्स कि आउट ऑफ रेंज वैल्यू कॉलम मोबाइल एट रो नंबर 1, मतलब कह रहा है क्या कि सर ये अब वैल्यू जो है आपका आउट ऑफ रेंज हो रहा है, तो क्या क्या करें अब इसको, मोबाइल वाले फील्ड को क्या करें हम लोग, अपडेट करके उसका डेटा टाइप चेंज करना होगा डबल। तो बताइए सर क्या करें, अपडेट कैसे कर सकते हैं आप इसे, अपडेट अपडेट से तो क्या होगा ना, मतलब अल्टर करना होगा, अल्टर करना होगा अल्टर करना सर। होगा, अल्टर करना। जी यस यस गुड, चलिए जी, वेरी गुड, थैंक यू, है ना। क्या करेंगे हम लोग भाई, इसको अल्टर करेंगे, तो अल्टर में क्या करेंगे, अल्टर अल्टर इम्प, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं इसको हम लोग, क्या करते, डबल एरर, एसक्यूएल सिंटैक्स, म्यूचुअल करस्पॉन्डिंग एरर, एरर अगेन एरर, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपने कहा मैंने कर दिया, लेकिन फिर आपको देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, अब तो नहीं हो रहा है ना, क्या करना पड़ेगा इसे बताइए भाई। यूजर को जो मिलना चाहिए, यूजर के सामने जो डाटाबेस प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें वो अपने डाटाबेस के मोबाइल नंबर तो 98 से शुरू होता है ना सर, हम 12 से शुरू करेंगे तो देख सकता है, लेकिन 98 की वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो वहां पे डाटाबेस में इंटर होना चाहिए ना वो डाटा वैल्यू हमारा। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, रिजॉल्व द प्रॉब्लम, रिजॉल्व द प्रॉब्लम, क्या कोई काम हो सकता है, क्या करते हैं,
वैरकर लगाने से तो काम नहीं चलेगा ना दीदी जी। आपको अभी उसमें आप इस फील्ड में ऐड कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है कि अभी आप ऐड कॉल मोबाइल कर रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब दूसरा क्या करेगा, एक कॉलम बनाएगा, बात में आ रही है। और एक फील्ड, एक डाटाबेस में एक फील्ड एक ही बार हो सकता है, दो बार नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर कि सर आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ऐड कॉलम, देखिए ध्यान से, ऐड कॉलम कर रहे हैं ना हम लोग, है ऐड मोबाइल, लुक एट हियर, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, मोबाइल नाम का ऑलरेडी तो फील्ड हमारे पास बना हुआ है ना रवि, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो जब आपके पास ऑलरेडी ये फील्ड बना हुआ है तो फिर ये फील्ड दूसरा ऐड कर सकता नहीं ना, उसमें कर सकता है क्या, नहीं करने देगा वो, ठीक है। नहीं तो करेगा। फाइनली क्या करना होगा मुझे, इसको क्या करना पड़ेगा ये बताइए मुझे। डिलीट करना। यस, क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। रिया दीदी, तो रिया दीदी आप सिंटेक्स बता दीजिए, ड्रॉप का सिंटेक्स क्या होता है। रिया दीदी सिंटेक्स बोलिए। तो क्या लिखे हम लोग, ऐड कॉलम वहाँ पे ड्रॉप अल्टर 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 टेबल, अल्टर टेबल व्हाट, इंप ड्रॉप 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 कॉलम ड्रॉप। सीधे मोबाइल करें या कॉलम करें, दोनों से काम करके देखें। ओके, हाँ डायरेक्ट भी करेंगे तो काम मेरा करेगा, क्लियर है ना। मोबाइल नाम का फील्ड क्या है, अब देखिए वहां से हट जाना चाहिए था, होना चाहिए था ना। अब करके देखिए हमारा हट गया ना यहाँ से, क्लियर है। तो कॉलम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम करेगा, इट विल वर्क देयर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, ओके। नाउ आई ऐड एरर, अगेन एरर। आपका यहाँ पे जो एरर है वो किसका एरर है पता है, डेटा टाइप का एरर, डेटा टाइप का एरर है आपका। ओके, लोड यू कैन से यूज, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डबल इज नॉट देयर, डबल इज नॉट अवेलेबल इन योर MySQL, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपने फ्लोट दे दिया। अब चलिए करके देखता हूँ, यस। अब चलिए देखिए यहाँ पे आ गया नल। अब मुझे क्या करना है यहाँ से, अब मुझे इसमें डाटा फीड करने हैं, क्लियर है। अब हमारे पास दो एम्प्लॉई है ना, अब हमारे पास क्या है, दो एम्प्लॉई है, क्लियर। अब हम यहाँ पे डाटा जो फीड करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं ना। तो अब देखिए इस कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे, अपडेट इम्प सेट मोबाइल नंबर, ठीक है। तब क्या होगा, तब क्या देखेंगे क्या, व्हाट विल हैपन, कैन एनीवन दोनों में से कंफर्म मी, मोबाइल आ जाए। यस, दोनों में से मोबाइल नंबर डाल दिया जाएगा, गॉट इट। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज 9835155183। प्लीज म्यूट योर ऑडियो, म्यूट योर ऑडियो, म्यूट ऑडियो म्यूट करिए। ओके, अपडेट imp set mobile number 98351, suppose this is my mobile number, no problem man. Okay, where imp id, where eid, okay, equal to what 101, ये रवि को नंबर मैंने दे दिया, सपोज करिए असाइन कर दिया, गॉट इट। तो अब क्या होगा यहाँ से, यू कैन सी हियर सर एक मोबाइल नंबर, ओ सॉरी मैं इसमें गलत डाल दिया, 9835155183। अब देखिए डाटा तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, वहां मैंने दिया कुछ और, ए लिया कुछ और, वही लिया ना, जी है सर। यस। ऐसे काम चलेगा क्या, सारा जी नहीं है, नहीं ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया ना ये हमारा, ठीक है। अब क्या करें, सारे दीदी बताइए, जल्दी बोलिए, कोई अकल काम नहीं कर रहा।
बताइए अदिति बहन, बोलिए, आप ही बोलिए। क्या चल रहा? अब देखा नहीं आपने? अभी मैंने वहां पे डाला था, लुक एट हियर, मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखिए यहाँ पे। अभी आपने यहाँ पे देखा क्या कि सर मैं जो डाटा यहाँ पे डाला है ना, ये जो मैं डाटा डाला था, मोबाइल नंबर डाला था ना, 98351 डाला था, लुक एट हियर, गॉट इट। लेकिन यहाँ मोबाइल नंबर एक्सेप्ट क्या किया, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, क्लियर। तो क्या ये दोनों मोबाइल नंबर सेम है क्या? आर दीज टू नंबर्स सेम? नहीं है ना, मतलब मैंने डाला कुछ और ले लिया कुछ और, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए जब फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़ी हो, तो याद रखेंगे कि हमें इस पे कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या कर दें, varchar ही कर दीजिएगा, क्लियर ना, क्लियर हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो रेंज बढ़ जा रहा है ना, ये रेंज एक्सीड कर जा रहा है, उसकी जो वैल्यू है उसके रेंज बाउंड्री को क्रॉस कर जा रहा है, उतनी बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता सर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप को varchar कर दीजिए, बस वहां से काम चल जाएगा हमारा। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि अधिक रेंज की डाटा जो होगी उसके लिए हमें क्या करना है, उसका डेटा टाइप अगर कोई अब इसमें मोबाइल नंबर में क्या हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वहां पे हम लोग काम जो करेंगे, इसको ऐड कॉलम मोबाइल, और यहां से कर दिया मैंने varchar, हो गया। पहले ड्रॉप करना होगा। हाँ वो हो चुका है। हाँ, इससे पहले का क्वेरी देखिए रवि जी, इससे पहले का क्वेरी देखिए सर, यहाँ देखिए, नहीं देखा आपने, मैं दिखा देता हूँ, लुक एट हियर, देख ली है ना, ये क्वेरी हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप कमांड यूज हो चुका है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। चलिए अब यहाँ से आने के बाद इसको ध्यान से देखें कि हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ से आने के बाद फिर इसको देखिए, आ गया। अब चलिए इसमें हम लोग वैल्यू डाल कर देखते हैं, क्लियर है, डालें, 1 रो affected, clear, now perfectly it's working man, perfectly it's working there, okay, got it। सारी दीदी समझ में आ रही है ना बात। अब चलो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में डालना है मुझे इसमें 9006289994, ठीक है। और ये किसको डालना है, ये सैली दीदी को नंबर देना है, हो गया। तो यहाँ से मैंने डाल दिया इस पे, और यहाँ से हिट एंटर की, ओके, यू कैन सी माय 2 numbers आर अपीयरिंग हियर, ठीक है, गॉट इट। तो ये हुआ क्या बाबू मेरा कि हमने रेंज भी चेक कर लिया, कि 10 डिजिट्स का तो मैं कोई नंबर डाल रहा तो वहां पे इंटीजर भी फेल है, फ्लोट भी फेल है ना, उस रेंज में डाटा उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाटाबेस में डाटा को चेंज कर लिया, डाटा टाइप को चेंज करना पड़ा, फिर जाके हमारा ये वर्क हो गया, क्लियर, ओके। चलिए अब हम लोगों ने तो हमने देखा क्या कि DDL के सारे कमांड्स हम लोगों ने देख लिया, यू कैन सी दैट हियर, यू कैन से हियर, DDL के सारे कमांड्स हम लोगों ने पढ़ लिया। DDL के जो कमांड्स थे हमारा क्या था, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट पढ़ा आपने, अल्टर देखा, ठीक है, अल्टर के बाद आपने ड्रॉप देखा ना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे DML के जो कमांड्स हमने यूज किया आज टुडे, वो उसको देख लीजिए। पहला क्या है आपका, इंसर्ट था, दूसरा क्या है आपका, अपडेट था, ठीक है, और तीसरा क्या हम लोगों ने किया, सेलेक्ट का काम किया है, ठीक है। बेसिकली ये हम लोगों ने ये सारे काम किए आज, है ना, इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट। अब एक काम हम लोग और कर देते हैं डिलीट का, ताकि हमारा DML भी कंप्लीट हो जाए, क्लियर है ना, पास में रहिए, अभी समय है हमारे पास, हो सकता है, संभव है, ओके। नाउ लुक एट हियर, अब हमें यहाँ से करना क्या है, अब हमें यहाँ से सपोज करिए जिस एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉय हमारा जो है 105 नंबर का एम्प्लॉय हमारा इस हमारे कंपनी से छोड़कर भाग गई, उसको अधिक पैसा मिला, सैलरी को अधिक पैसा मिला, बस हमारी कंपनी को क्विट कर गई, है ना, अब इतना कम पैसे पे मैं काम नहीं करूंगी, क्लियर ना। तो चलिए देखिए हमने क्या करें, डिलीट,
तो अब इस इम्प्लाई को मुझे को कैरी नहीं करना, ठीक है। डिलीट फ्रॉम कहाँ से, imp, delete from imp where eid equal to what 105, delete क्या delete all information, ठीक है। delete all information of all from imp where imp id equal to what, ठीक है 105. Got it? Oh, sorry. Delete. You can say here. Delete all from now. You can say that delete from now. I am going to select all the information from, ठीक है। Delete from, ठीक है। तो अब वहां से क्या हो गया कि सारी चीजें हमारे डाटाबेस से निकल चुकी हैं और यहाँ से देखिए only one employee is there. Got it? तो हम लोगों ने सारे कमांड्स देख लिए DDL DML का। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे RDBMS के कमांड्स कुछ पढ़ेंगे। RDBMS कमांड्स में, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, लेकिन सारे के सारे कमांड्स ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन वहां पे RDBMS में क्या होगा, ज्वाइनिंग ऑफ टेबल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी मैं सिंगल टेबल पे काम कर रहा था, अगले दिन क्या करूंगा, एक एम्प्लॉय हो गया और दूसरा सैलरी नाम का मैं डाटाबेस बनाऊंगा वहां पे, ठीक है। तो सैलरी नाम के डाटाबेस से क्या करेंगे, डाटा फेच करेंगे, फिर दोनों एम्प्लॉय का सारा डिटेल मेरे पास आना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। अब RDBMS के कमांड्स हम लोग अगले क्लास में एग्जीक्यूट कराएंगे। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को नहीं आया है वो फिर से बता सकते हैं कि सर मैं नहीं समझी हूँ, मैं नहीं समझा हूँ, मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगले दिन आप भी जब भी आए तो RDBMS का कमांड्स देकर आए, RDBMS का कमांड जो है आप पढ़ कर आएंगे। क्लियर है? तो अधिक समझ में आएगी। कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं सर। नो सर। पूछना तो है ही नहीं हमको। अच्छा है, वेरी गुड है ना। तो चलते हैं हम लोग फिर, और इसी समय हमारा जो निर्धारित समय है 11 बजे, तो हम 11 बजे मिलेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन पढ़ कर तो मजा आएगा। और दो टेबल पर कैसे वर्क करते हैं और दोनों टेबल से डाटा हम लोग कैसे फेच करते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसको पढ़ कर आइए, और इससे हमें बस इसके 1-2 क्लास के बाद फिर पाइथन पे मैं रिटर्न आने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां से पाइथन पर जब मैं रिटर्न आऊंगा तो फिर ये कमांड्स मत पूछना कि सर ये कैसे काम कर रहा है, वहाँ डायरेक्ट वहाँ कमांड लिखेंगे हम लोग, वहां से एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, काम करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर्स।